Good afternoon, students. Today we are covering operation and function of operating system. So we are discussing on Unit 2, Module 2, Unit 2, and we are covering all the functionality and operations which performed by the operating system. Previously, yesterday class we have seen some chapter content. What we are means already means read in the next upcoming slide and classes. So introduction are like that, operation and functions of OS, type of operating system, operating system examples, just like disk operating system, DOS, Unix, Windows, and Macintosh, and summary of the chapter. So after completing this chapter, objective of this chapter is describe operation and function of operating system. Next is explain various type of operating system. So yesterday we have covered introduction and most probably so here Sakshi, we have started from this slide. Yesterday we have covered but partially covered operation and function of operating system. So the main operation and function of operating system as follows, just like process management, memory management, secondary storage management, input output management, file management, protection, network management, command interpretation. Okay, so these are the function and operations which performed by the operating system. Here I have any doubt, Sakshi? So, Sakshi? still no doubt. So what is process management? So अभी तक क्या प्रोसेस के बारे में क्या जान रही थी, वो कुछ आइडिया देंगी? The process means the execution of program is called process. Execution of a program is a process. प्रोसेस एक्चुअल में एलोकेट किया जाता है प्रोसेस आईडी इसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू मॉनिटरिंग के लिए पर्पस से कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लिया, क्या क्या रिसोर्स यूज में, क्या वो सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें। तो आप प्रोसेस के बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हो, रीड कीजिएगा पहला। The CPU executes a large number of programs, while its main concern is the execution of user program. The CPU is also needed for some other activities, system activities. These activities are called processes. तो ये समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, so A process पूरा is a in full slide we have understood the process and how system manage the process in whole processing में। so ये पूरी slide में हम लोग ये देखेंगे। कंटिन्यू कीजिए। A process is a program in execution. Typically, a batch job is a process. so बैच क्या है? एक प्रोसेस का काम करता है। जस्ट लाइक आपका डेस्कटॉप रेडी होना, तो डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें होती है? आपका आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, डेस्कटॉप में जो इमेजेस होते हैं वो होते हैं, क्लॉक्स होते हैं, राइट साइड में बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स एंड एक्टिविटीज होते हैं, जैसे नेटवर्क का हो गया, आपका ये डेट टाइम हो गए, नोटिफिकेशन एरिया होते हैं। वो सारी चीजें क्या है, एक बैच के तौर पे वर्किंग होती है। एंड जब भी आपका डेस्कटॉप रेडी होता है वो सारी चीजें पहले एग्जीक्यूट होती है एट ए टाइम, मतलब सब
एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा, 1 by 1 करके होगा, लेकिन वो बैच के रूप में होगा। तो पहला डेस्कटॉप रेडी करना, मतलब इमेज जो है वो सेट करना, उसके बाद उस पे जो आइकन्स है उसको लाना, फिर उसके बाद नीचे का टास्क बार लाना, फिर स्टार्ट मेनू दिखाना, फिर जो डेट टाइम है वो सारी चीजें एक्टिविटी 1 by 1 करके वो दिखाना। नेक्स्ट इज A time-shared user program is a process. A system task such as polling is also a process. For now, a process may be considered as a job or a time-shared program, but the concept is actually more general. तो यहाँ पे क्या बोला, टाइम शेयरिंग, अगर यूजर कोई टाइम शेयर कर रहा है किसी और प्रोसेस का, वो भी प्रोग्राम, टाइम शेयर यूजर प्रोग्राम इज अ प्रोसेस, मतलब यूजर प्रोग्राम जो टाइम शेयर कर रहा है मल्टीपल प्रोसेस के साथ, वो भी एक प्रोसेस ही है। अ सिस्टम टास्क जस्ट लाइक स्पूलिंग, जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, बफर, आपका हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना, राइट करना, वो सब क्या है, सब एक प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। A process may be considered as a job or a time share program, but the concept is actually more general कि आप फाइल इनपुट आउटपुट करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, कंसोल पे राइट कराते हो, सब एक अलग अलग प्रोसेस के अंतर्गत वो काम करते हैं। नेक्स्ट, The operating system is responsible for the following activities in connection with process management: जस्ट लाइक the creation and deletion of both user and system processes, the suspension and resumption of processes, the provision of mechanism for processes synchronization, the provision of mechanism for deadlock handling. तो क्या क्या इसमें आया, प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को डिलीट करना, वो यूजर का प्रोसेस हो या सिस्टम प्रोसेस हो, दोनों काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सस्पेंशन एंड रिज्यूमशन, मतलब किस प्रोग्राम को, जैसे फाइल राइटिंग करने का है, तो वो प्रोसेसर क्या करेगा, रिक्वेस्ट दे देगा कि वो फाइल इस हार्ड डिस्क में इस लोकेशन पे, एड्रेस पे अपडेट करके लाओ। उसको कौन लाएगा, तो एक अनदर प्रोसेस क्या करेगा, उस फाइल को लाने जाएगा, उस फाइल को लेके आएगा, कहाँ पे रखेगा, टेम्पोररी मेमोरी में। टेम्पोररी मेमोरी बोले तो रैम में, रैम में रखेगा। जब अगेन इसका नंबर आएगा, तब फिर ये उस पर काम करना चालू करेगा, तब तक वो प्रोसेस को सस्पेंड करके रखेगा, साइड करके रखेगा, तब तक वो प्रोसेसर दूसरे पे टाइम देगा, दूसरे प्रोसेस को करेगा, ना कि इसका फाइल का आने का वेट करेगा और वो चीजें, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब फिर शेड्यूल में आएगा तब वो उस पर काम करेगा। तो सस्पेंशन एंड रिज्यूमशन, मतलब कि जब उसका टेम्पोररी फाइल नहीं आ जाता है, तब तक वो सस्पेंड करके रखेगा, जब आ जाएगा तो फिर उसको, उस प्रोसेस को वहीं से रिज्यूम करेगा आगे के लिए, ये नहीं कि फिर से वो स्टार्टिंग से रिज्यूम करेगा। तीसरा पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मतलब अगर 5 प्रोसेस एट ए टाइम रनिंग कर रहा है, तो कैसे पांचों सिस्टर प्रोसेस को प्रोसेसर टाइम देगा, वो सिंक्रोनाइजेशन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके मतलब टाइम शेयरिंग का वो किया जाता है प्रोसेस। द प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडलिंग कब होता है, जब एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करना चाहते, जस्ट लाइक कि आप कभी एक वर्ड फाइल को 3-4 बार खोलने की कोशिश कीजिएगा, एक बार तो खुल जाएगा प्रॉपर, उसके बाद बोलेगा कि ऑलरेडी ओपन, सो रीड ओनली मोड में ओपन करूं या कैंसिल करूं। तो रीड ओनली मोड अगर कर दीजिएगा तो आप उस फाइल में चेंजेस नहीं कर पाइएगा। तो वैसे कंडीशन में होता है कि अगर 3-4 यूजर या 5 यूजर, अलग अलग यूजर उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो डेडलॉक कंडीशन में आ जाता है कि किसको दूं पहले,
तो जो पहले रिक्वेस्ट डालेगा उसको मिलेगा, बाद बाकी को वो बोला जाएगा कि ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? यस सर। तो नेक्स्ट मूव टू द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है, रीड कीजिए। Memory is the most expensive part in the computer system. Memory is a large array of words or bytes, each with its own address. समझिए कुछ। सर ये तो समझ आया कि memory is the expensive part in a computer system, but large array of words और bytes ये नहीं है। अ, जो मेमोरी होती है, आप जैसे एरे का है तो 5 या 10 जो भी आप एलोकेट करते हो वो मेमोरी। लेकिन हार्ड डिस्क में तो बहुत सारे मेमोरी होते हैं ना। कितना स्पेस होता है? जैसे 1 TB हो गया, तो 1 TB में कितना डेटा आएगा? बहुत सारे आएंगे ना। तो कैसे रीड राइट कैसे होगा मेमोरी? सो लार्ज एरे, मतलब एरे का मतलब एड्रेस। बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं जो कि आप सेव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसमें फाइल राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। किसमें? मेमोरी में। किसके थ्रू? उसके मेमोरी एड्रेस के थ्रू, ओन एड्रेस। हर एक मेमोरी का अपना अपना इंडिविजुअल एड्रेस होता है उसके साथ। नेक्स्ट। Interaction is achieved through a sequence of reads or writes of specific memory address. The CPU fetches from and stores in memory. समझ में आया? ये सर मेमोरी स्टोर करता है डेटा, जब भी जरूरत होती है तो सीपीयू यूजर सीपीयू के थ्रू कोई भी डाटा फेच कर सकता है। सीपीयू डायरेक्टली वो फेच नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है किसी दूसरे प्रोसेस को जो फाइल हैंडलिंग का काम करेगा उसको। फाइल फिर ओ, वो उठा के लाएगा, फिर ओपन करेगा, एक्सेस करने देगा। अगर जैसे कोई और यूजर यूज कर रहा है तो इस सीपीयू को एक्सेस करने का राइट्स नहीं मिलेगा कि आप चेंज कर पाओ, तो सिर्फ आप रीड करके दिखा पाओ। वो चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को नेक्स्ट। there are various algorithms that depend on a particular situation to manage the memory. तो एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि एल्गोरिदम और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। कि आप Yes, एल्गोरिदम में क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या है कि डेटा कैसे स्टोर कीजिएगा, और ये क्या है, yes. आप डेटा कैसे रीड करके दिखाइएगा। वही है Oh, यहाँ। देयर आर वेरियस एल्गोरिथम दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू मैनेज द मेमोरी। कि आप डेटा को कैसे अरेंज कीजिएगा, कैसे स्टोर कीजिएगा, ताकि आप इजीली गेट कर पाए, इजीली अपडेट कर पाए, इजीली उसको मैनेज कर पाए। ठीक है। yes. नेक्स्ट। Selection of a memory management scheme for a specific system depends upon many factors, but especially upon the hardware design of the system. Each algorithm requires its own hardware support. कुछ और समझ में आया ये? No, sir. आगे चलो। Yes, sir. The सो operating system is responsible for the following activities in connection with memory management. लाइक Keep track of which part of memory are currently being used and by whom. Decide which processes are to be loaded into memory when memory space becomes available. Allocate and deallocate memory space as needed. तो ये सब काम किसका है? सीपीयू के थ्रू Memory. ये सारे काम होते हैं। इस स्लाइड में कोई डाउट है? No, sir.
साक्षी? नो सर, कोई डाउट नहीं। तो पहले तो अभी हम लोग देख लें क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी कितने टाइप का होता है ये भी तो जानना पड़ेगा। यस सर। सो अब हम लोग जो देखेंगे वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे। मैंने स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंड प्राइमरी क्या होगा? द मेन पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर system is to execute programs. These programs, together with the data they access, must be in memory during execution. Since the main memory is too small to permanently accommodate all data and programs, the computer system must provide secondary storage to back up main memory. ये लाइन का मतलब बताओ। सर, मेन मेमोरी में सारे डेटा डेटा या कोड सेव होते हैं जो कि यूजर एग्जीक्यूट करता है, बट मेन मेमोरी की साइज स्मॉल होती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी एज अ बैकअप यूज किया जाता है ताकि उसमें सेव रहे। यहाँ पे मेन मेमोरी का मतलब क्या हुआ? अच्छा, रोम। हम्म? तो मेन यहाँ पे मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की तरह। प्राइमरी और मेमोरी और मेन मेमोरी, इसका मतलब हुआ रैम। फिलहाल रैम जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है रैम के एड्रेस को डायरेक्टली, क्योंकि स्पीड पहले बताए थे ना कि सीपीयू की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, देन एल यस सर, वन फिर एल टू कैश। एल थ्री कैसे की होती है, उसके बाद यस। रैम की होती है, एंड उसके बाद अभी जो एसएसडी आई है वो इक्विवेलेंट टू द प्रोसेसर है। ठीक है? यस। जल्दी काम करेगा, जल्दी क्रैश भी करेगा एसएसडी जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट डेटा रीडिंग और राइटिंग वो करना, तो वो ज्यादा डेंजरस है चीजों के लिए। तो आपका रैम हो गया क्या, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी या एसएसडी बोल लो कि प्राइमरी मेमोरी अभी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा हो गया? हार्ड डिस्क। नॉर्मल हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी है। वहां पे परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम डेटा का यूज करते हैं। अगर मान लो कि आप 10 फाइल ओपन कर रहे हो, तो 10 फाइल देखिए कि सिस्टम हैंग करने लगा। जब मूव कीजिएगा यस। एक से दूसरे फाइल में, दूसरे से तीसरे फाइल में, तो आपको हैंगिंग का फेस करना पड़ेगा कि थोड़ा देर वो स्टक हो गया। तो स्टक क्यों हुआ? वो टेम्पोररी मेमोरी में उसका रखा है, जो पेज आप ओपन करके रखे हो वो डेटा रखा है, ना कि आपका रेस्ट ऑफ द पेजेस में। तो जैसे ही आप मूव करते हो एक से दूसरे उसमें, देन वो हैंगिंग सिचुएशन में आता है, क्योंकि वो लोड करता है कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से। रीड कीजिएगा। Most modern computer systems use disk as the primary online storage of information of both programs and data. Most programs like compilers, assemblers, short routines, editors, formatters, and so on are sorted on disk until loaded into memory and then use the disk as both the source and destination of their processing. समझ में आया कुछ? No, sir. Next. Hence, the proper management of disk storage is of central importance to a computer system. There are few alternative magnetic tape systems are generally too slow. In addition, they are limited to sequential access. Thus, tapes are more suitable for storing frequently used files when speed is not primary concern. मैग्नेटिक टेप बोले तो देखें आप मैग्नेटिक टेप? No, sir. हम्म? No, sir. रील जो पहले आती थी देखें? Yes, sir. वही रील
रील को मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया लेजर का, तो सीडी एंड डीवीडी ये वो सब आने लगा डीवीडी। किस पे, लेजर पे। उससे पहले आपका वो फ्लॉपी चलता था, वो भी मैग्नेटिक टेप का ही एक पार्ट है। उसके बाद रील्स आया था, उसके बाद वो आपको डिस्क आने लगा, सीडी आने लगा, फिर डीवीडी आने लगा, एंड नाउ पेन ड्राइव और समथिंग समथिंग और। तो रीड कीजिएगा। The operating system is responsible for the following activities in connection with disk management: free space management, storage allocation, disk scheduling. तो ये चीज समझ में आई। Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी में क्या है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट करता है, जो कि अगर अनवांटेड फाइल है, गार्बेज फाइल है, तो उसको उठा के कहाँ पे ले जाता To है, delete. रिसाइकिल बिन में आपका अभी ले जाता है। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई फाइल हमें डिलीट करना हो हमेशा के लिए, Yes. तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? डिलीट करने के लिए कमांड से अच्छा क्या डिलीट बटन? कमांड। डिलीट कमांड कभी करके देखियो। नो सर। अगर करके देखियो तो अपना डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन है, एक बार ओपन यस करना। सर है। यस सर। क्या क्या है उसमें? सर इसमें कोई कुछ नहीं, सिर्फ डस्टबिन लिखा है। अच्छा मतलब ब्लैंक है अभी। यस सर, ब्लैंक है। ओके। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप नॉर्मली डिलीट करती हो ना, तो वो यस सर, रिसाइकिल वो बिन में चला रिसाइकल में जाता है। स्टोर हो जाता है। यस। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करती हो, तो वो पूरा सिस्टम से आउट होता है, उसका कोई बैकअप नहीं होता। नहीं। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कैसे होती है चीजें, वो देख लीजिए। One of the purpose of an operating system is to hide the peculiarities or specific hardware devices for from the user. For example, in Unix, the peculiarities of input-output devices are hidden from the bulk of the operating system itself by the input-output system. The operating system is responsible for the following activities in connection to operating input-output management: a buffer कैचिंग नहीं, कैशिंग सिस्टम। caching system to activate a general device driver code, to run the driver software for specific hardware devices as and and when required. तो ये समझ में आया इसमें। Uh, सर तीनों पॉइंट्स नहीं समझ आए। तो इनपुट आउटपुट तो कैशिंग मैनेजमेंट का सिस्टम क्या काम मतलब, है? तो कैशिंग सिस्टम। यूनिक्स की बात कर रहे हैं क्या? नो सर सर, अ बफर कैशिंग सिस्टम। अच्छा, ये ऊपर का पॉइंट समझ में आ गया आपको? मतलब तो हाइड पेक्युलरिटी और स्पेसिफिक हार्डवेयर जैसे फॉर एग्जांपल। देखो ऊपर, नो सर। ऊपर ये बोल रहा है कि कोई भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन होती है, तो सिस्टम बैकएंड में क्या कर रहा है उससे यूजर को कोई लेना देना नहीं होता है, वो चीजों को हाइड करता है। ठीक है, यूजर को ये नहीं यस। बताता कि हाँ हम इस प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जाओ फाइल लेके आओ, चेक करो या लेके आओ। फाइल मिलेगा तो लाएगा, नहीं मिलेगा तो वो मैसेज देगा, फिर प्रोसेसर यस। आगे काम करता है। तो जब भी कोई प्रोसेस हम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस इनबिल्ट होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे
राइटिंग करना है तो वो राइटर का यूज करते हैं, Yes. राइट राइट लाइन करते हैं ना, राइट या राइट लाइन Yes. या फिर सी आउट करते हैं। तो वैसे ही Yes. वो आउट के लिए अलग है, इन के लिए अलग है, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। फाइल रीड करने के लिए अलग है, फाइल राइट करने के लिए अलग प्रोसेस है। तो वो क्या है, बैकएंड में जो भी चीजें चल रही होती है उसको यूजर से हाइड किया जाता है। यूजर को सिर्फ आउटपुट इनपुट लिया जाता है एंड आउटपुट दिया जाता है। बीच में क्या हो रहा है वो चीजें नहीं बताता है। ये कौन हाइड करता है, इनपुट आउटपुट और मैनेजमेंट हाइड करता है। यहाँ पे देखिए, यूनिक द peculiarities of input-output device are hidden from the bulk of the operating system itself by the input-output system। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट भी होता है जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए अलग ही उसका पूरा है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होकर वो चीजें मतलब मैनेज करता है अपना इंटरनल हिस्सा। अब यहाँ पे क्या है, अब बफर कैसे सिस्टम, कैसे सिस्टम का क्या है, मतलब कि वो डेटा लेके आएगा, टेम्पोररी रखेगा, जैसे ही उसका काम प्रोसेसर कर लेगा देन उसको मेमोरी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बफर मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, टू एक्टिवेट अ जनरल डिवाइस ड्राइवर कोड। अगर कोई भी जैसे प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर को अगर कोई कमांड जाती है तो वो सीपीयू कैसे समझेगा कि ये प्रिंटर को कमांड गया है या फिर ये उसको। आपको पता है कि सीपीयू ब्रेनलेस होता है, No, sir. So, क्योंकि it is the brain of the computer system. लेकिन ब्रेनलेस होता है। जब ब्रेन नहीं रहेगा तो हार्ट कैसे हो सकता है या ब्रेन कैसे हो सकता है। Yes, sir. वो एक मशीन है और मशीन को जैसा बताया जाएगा वैसा वो करेगा। ठीक है, Yes. पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो वैसा ही करेगा। तो वही जब हम प्रिंट का कमांड देते हैं तो क्या करता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, उसके ड्राइवर को उठा के लाता है और उसके साथ अटैच करके देता है कि ये प्रोसेसर मतलब सीपीयू ये समझे कि इससे रिलेवेंट काम है और इसमें जो प्रिंटिंग का जो काम दिया गया है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करके ये टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो ड्राइवर लाने का काम किसका है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या है, टू रन द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर सच एज व्हेन रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक अगर प्रिंटर नया लाते हैं तो हम इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर, ताकि सिस्टम ये समझ पाए कि हाँ ये डिवाइस या ये एक्टिविटी मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड हमको जब इसका कमांड मिलेगा तो हमें क्या करना है। जैसे कमांड मिलेगा कि प्रीव्यू दिखाना है तो प्रीव्यू का वो देखेगा, दिखाएगा। प्रिंट का होगा तो प्रिंट दिखाएगा। अगर ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जैसे पेज सेटअप है वगैरह वगैरह है तो वो सबका अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Yes. चले, फाइल मैनेजमेंट। रीड कीजिएगा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए होंगे होंगे अजीत सर से, लेकिन रीड कीजिएगा। File management is one of the most visible service of an operating system. Computers can store information in several different physical forms. Magnetic tape, disk, and drum are the most common forms. Each of these devices has its own characteristic and physical organization. For convenient use of the computer system, the operating system provides a uniform logical view of information storage. The operating system abstracts from the physical properties of its storage devices to define a logical storage unit. The files are mapped by an operating system onto physical devices. The file is a collection of related information defined by its creator. Commonly, file represents programs, code source, and object forms and data.
Data files may be numeric, alphabetic, or alphanumeric. Files may be free from such as text files or may be rigidly formatted. In general, a file is a sequence of bytes, lines, or records whose meaning is defined by its creator and user. It is very general concept. The operating system implements the abstract concept of a file by managing mass storage devices such as types and disks.